The big guns of both the parties have come out and have campaigned extensively. For the Congress party as well, it's going to be an extremely crucial battle. And now as people come out to vote, the voter turnout until 10 a.m. is 7%. What is the impact it's going to have on the polls is going to be extremely crucial. Let me go across to Akanksha, who is joining us from Kalkaji. Remember, the Prime Minister had inaugurated over 3,000 new flats under the rehabilitation project, and a credit war had also broken out. Akanksha, what is the impact that you're seeing there? What has the voter turnout been like? What are the people who have come out to vote saying? What are the key issues for them? Coming here, as you can see, this is the Kalkaji polling booth here in the national capital. This is where Aam Aadmi Party leader Atishi is going to come in some time. But MCD elections have gained a lot of national importance as well, because this is the prestige fight for the BJP, which seeks to retain the dominance over the MCD. And this is also happening at the same time when the Gujarat elections are going on. Other than that, Aam Aadmi Party, which governs the national capital, also seeks to hold power in the MCD as well. And over the last few months, we saw how allegations and counter allegations of corruptions were leveled by both the parties. In 2017, BJP won two-thirds of the majority. But let me just go across and speak to a few people here. आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों पे आपने आज वोट डाला है यहाँ पे? इस पर क्या साफ सफाई इलाके की, कालकाजी एरिया की, क्या ये आपका मुद्दा रहा था? हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है। आंटी, आप भी देने आए थे वोट आज यहाँ पे? किन मुद्दों पे वोट दिया आपने? पहले तो कहते हैं मुझको तो जेबी ना समझ। So I'll just go across and speak to more people here. अंकल, आपने आज वोट डाला है यहाँ पे, क्या कुछ मुद्दों पे आपने आज वोट डाला? मुद्दे वही हैं जो आम जनता के होते हैं, जैसे सफाई वगैरह जो ये कह रहे हैं। पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ। अच्छा। जैसे गंद पड़ा होता है। खैर बिजली पानी तो थोड़ा ठीक हो गया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी और मुद्दे ये एमसीडी के मुद्दे जो काम है वो सफाई के ही हैं मैक्सिमम तो। So as you heard, the issues here are definitely about school, sadak and safai. These remain the issues. There are more people here. We will just go across and speak to them. आप आज वोट डालने आए, क्या कुछ मुद्दे आपके दिमाग में हैं? आप अंदर जा रहे हैं? Basic. Okay, all right. So these are the issues that people are voting for. Nilashish, we can see some action around you as well. Even until the last moment, the top leaders continue to be in the city. What's happening there? Oh, ठीक है आप बढ़िया चल रहा है। हाँ जी, आओ ना दुर्गा जी, आओ दुर्गा जी। Nilashish? In fact, joining me right now is Vijender Garg at this point. सर, सबसे पहले आप जानना चाहेंगे, आप कल प्रचार कैंपेन में थे यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल था। आप रात को यहाँ प्रचार कैंपेन में थे? प्रचार हम जो वैलिड टाइम था प्रचार का, उसमें हम प्रचार कर रहे थे और कल कोई प्रचार नहीं था। तो वीडियो जो आ रहा है, बीजेपी का आरोप है कि आप कल प्रचार कर रहे थे इस टाइम पे और अवैध चीजें बांट रहे थे। बीजेपी वालों का काम ही दुष्प्रचार करना है। हम प्रचार नहीं कर रहे थे, वो दुष्प्रचार कर रहे थे, और वो सारे में उन्होंने बहुत कुछ देने की कोशिश की। लेकिन नारायणा वार्ड की जनता, पांडव नगर की जनता बहुत समझदार है। एक एक वोट झाड़ू पर पड़ रहा है, क्योंकि उनको काम चाहिए। उनको बीजेपी वालों का पैसा या दारू नहीं चाहिए। तो ये जो कल वीडियो आया है, जो बीजेपी बोल रही है, वो कल की वीडियो नहीं है। वो सरासर गलत है, झूठ है, और ये फ्रॉड लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एमसीसी का कोई वायलेशन नहीं हुआ है? एक 0% भी वायलेशन हम कर ही नहीं सकते। हम लॉ अबाइडिंग है, आम आदमी पार्टी लॉ को लेकर के चलती है। ये बीजेपी वाले जगह जगह वायलेशन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जगह जगह झंडियां, पोस्टर, दारू, पैसा खूब बांटने की कोशिश की, लेकिन एक एक आदमी मजबूत है। गरीब का ईमान कभी नहीं बिक सकता। पर बीजेपी कह रही है दारू पैसा आप बांट रहे थे दुर्गेश पाठक जी के साथ। देखिए, हम ना तो दारू पीते हैं, ना किसी को पिलाते हैं। हम तो काम करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। दारू और पैसे की राजनीति बीजेपी करती है। तो अभी आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव दिल्ली में हम लोग 225 सीटों के साथ एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं। नारायणा वार्ड हम 8 से 10 हजार के मार्जिन से जीत
रहे हैं। और आपका एलिगेशन ये है, उल्टा एलिगेशन है कि बीजेपी इनफैक्ट वो कर रही है, प्रचार कर रही है इलीगल तरीके से। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उन्होंने टोटल वायलेशन किया, उनका तो खर्चा। आप ये भी कह रहे हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर आप पे भी देखे, इंक्वायरी करे, तो आप ठीक है इससे? बिल्कुल इंक्वायरी करे, मैं तो कहता हूँ इंक्वायरी करे, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बीजेपी के खिलाफ भी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं? डेफिनेटली होनी चाहिए। उन्होंने तो 100% वायलेशन किया, जगह जगह वायलेशन किया। उनको इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। वो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं और तरह तरह की अफवाहें यहाँ फैलाई गई है, सब कुछ बांटा गया है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता केजरीवाल के साथ है। आप कल यहाँ क्या कर रहे थे, ये सवाल? मैं जी। एक डेथ हो गई थी, उनसे मिलने आया था। नहीं आ सकता कैंडिडेट? देखिए, कैंडिडेट के सारे लोग अपने हैं, परिवार है। मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ, 5 साल मैं विधायक रहा, मेरा एक एक से जुड़ाव में, मैं बाई नेम लोगों को जानता हूँ, उनके घर में जाता आता हूँ, सुख दुख का साथी हूँ उनका, इसलिए मैं आया था कल। अच्छा, अब ये बताइए, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से ये चुनाव चल रहा है, जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं, क्या क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे? देखिए, मुद्दे सबसे बड़े सफाई के हैं, रेडी पटरी वालों को जिनको रोज तंग किया जाता है, ये बीजेपी के लोग आकर के इनसे पैसा वसूलते हैं। और यहाँ पर पार्कों का मुद्दा है, यहाँ पर जो गंदगी है, नाले भरे पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी है, सारे मुद्दे हैं ये। That was Vijender Garg speaking exclusively to us at Times Now here, saying that the allegations against him are baseless. He's open to an inquiry, and he also accuses the BJP, in fact, of engaging in foul play and of This violation is after the of BJP accused the two of violating the NCD poll guidelines. Thanking all our reporters for joining us from ground. So very interesting battle that's playing out. We're getting you voices from the ground, because remember, this is not just about the civic polls in Delhi. It's going to have an impact nationally as well. Slipping into a quick break here. Don't go anywhere. We'll be right back.